Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here with the part 10 of the chapter equality. We have completed 9 parts and I hope that were clear to all of you. In the last class we have discussed that how can we promote equality, especially formal equality, which we can ensure through the enforcement of the law. That we have discussed that how can we create formal equality on each and every basis. Right? In today's class, what we are going to discuss? We will discuss equality through differential treatment. Because we have discussed in the starting of the chapter also that all the people are not equal. Some people maybe they require some special protection for their development. Some special type of rights they need for their complete development, and that's why we are going to give them some special provisions. In the constitution also we have made some type of provisions like that. If you can see article 29 and 30 of our constitution, right, which is telling us that yes, all the communities they are able to preserve their language and culture, right, that we have discussed already. So today we are going to discuss in the theoretical part equality through differential treatment. What is the meaning of this particular thing? Let us discuss it. However, as we noted earlier, formal equality or equality before law is necessary but not sufficient to realize that principle of equality. अब देखो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना कि फॉर्मल इक्वालिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ. It means the equality which is based upon the law. We say that every person is equal in the eye of the law. We say it, right? So that is considered as formal equality, when we consider every person equal on the basis of the law, before the law, right? It is important also, but not sufficient to realize the principle of equality. ये बात अच्छी है कि आप मानते हो कि ये required है, it is necessary, but ये sufficient नहीं है. आपने लॉ के थ्रू सबको राइट टू वोट दे दिया, राइट? आपने सभी को इक्वल मान लिया, दैट ऑल द सिटीजन्स विल बी इक्वल. बट क्या सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी देना वो इनफ है फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द होल सोसाइटी? क्या उस फॉर्मल इक्वालिटी को सारे के सारे जो हमारी सोसाइटी का पार्ट है, जितने पीपल, आर दे एबल टू एंजॉय इट? क्या उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लोग बहुत टाइम से बहुत कुछ टॉलरेट करते आ रहे हैं, राइट? सो वो अगर आप बात करते हो फॉर्मल इक्वालिटी की, वो नेसेसरी है. इक्वालिटी बिफोर लॉ नेसेसरी है बिकॉज वी आर क्लियरिंग इट, वी आर क्लियरिंग बाय द लॉ ऑफ द कंट्री दैट यस एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली. बट ये सफिशिएंट नहीं है इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव इक्वालिटी ऑन रियल बेसिस, राइट? Sometimes it is necessary to treat people differently in order to ensure that they can enjoy equal rights. और कई बार क्या होता है, ये नेसेसरी हो जाता है लोगों को ट्रीट करना डिफरेंटली. क्यों? ताकि वो कुछ इंजॉय कर सके, कुछ इक्वल राइट्स को इंजॉय कर सके. अब देखो हम लोग बोलते कि राइट टू वोट है आपके पास. वी ऑल आर पॉलिटिकल सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड फॉर बीइंग द पॉलिटिकल सिटीजन ऑफ इंडिया आपके पास सिर्फ राइट टू वोट नहीं है, you are having the right to be elected as well. बट क्या हम जो देखते आ रहे कि जो हमारी सोसाइटी में इतने टाइम से डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा था, उसके बेसिस पर अगर आपको रियलाइज होगा तो क्या जो ऐसी कैटेगरीज हैं, जो ओबीसीज हैं, रिजर्व कैटेगरीज हैं, तो अगर उन लोगों के लिए हम लोगों ने सीट्स रिजर्व नहीं की होती तो क्या वो इंजॉय कर पाते ये पॉलिटिकल राइट? नेवर. इट वॉज नेवर पॉसिबल. इसीलिए क्या होता है, सभी ऐसे ग्रुप्स को डिफरेंटली ट्रीट करना रिक्वायर्ड है ताकि वो भी उस इक्वल राइट को एंजॉय कर सकें. समझ आए? क्योंकि अगर आप सभी को इक्वली ट्रीट करोगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि देखो फॉर्मल इक्वालिटी दैट इज फाइन, बट अगर इस फॉर्मल इक्वालिटी के थ्रू आपने सबको ट्रीट करना शुरू किया ना, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. Certain differences between people may have to be taken into account for this purpose. और इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है? कुछ differences, right? इस पर्पस के लिए हम कुछ differences कहीं ना कहीं ensure करते हैं. Yes, it should be there, right? For instance, disabled people may justifiably demand special ramps in public spaces so that they can get an equal chance to enter
पब्लिक बिल्डिंग्स। अब देखो आप लोग देखते हो कि हमें, अगर देखो वही एग्जांपल जो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको लगे कि आप एक रो में खड़े हो और आप एक ना एज्ड पर्सन के लिए या फिर डिसेबल पर्सन के लिए ना सेपरेट रो बना दी, आप नहीं बोलोगे कि ये इनइक्वालिटी हो रही है, बट यू विल फील इट इज रैशनल, है ना। मतलब आप लोगों ने कुछ को स्पेशल राइट्स दे दिए कि वो एंटर कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल डिसेबल पीपल के लिए रैंप्स बना दी सो दैट दे कैन मूव इजीली, दे कैन ऑल्सो एंटर इन द पब्लिक प्लेसेस। तो आप इसको इनइक्वालिटी नहीं मानते ना, ये कुछ ऐसा एक्शन ना रिक्वायर्ड होता है ताकि वो पर्सन जो आपने फॉर्मल इक्वालिटी का प्रिंसिपल इंश्योर किया है वो भी उसको एंजॉय कर सके। वो जस्ट फॉर्मल इक्वालिटी जस्ट प्रिंसिपल्स में ना हो, वो प्रैक्टिकलिटी में भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, राइट। तो आप इसको इनइक्वालिटी नहीं ट्रीट करते। अब देखो, टू इंश्योर अ फेयर सिलेक्शन यू ऑल गेट द सेम टेस्ट, यू मस्ट ऑल क्लाइम द ट्री। अब देखो क्या है, तुम क्या बोला गया कि आप लोगों को ना सिलेक्शन लेने के लिए एक सेम टेस्ट से क्रॉस होना पड़ेगा, और सबको बोला गया कि आपको ना उस पेड़ पर चढ़ना है। अब देखो इसमें बर्ड्स भी हैं और एलिफेंट जैसे हैवी एनिमल भी है, मंकी भी है, रैबिट भी है ना, कैट्स भी हैं। अब देखो, और इवन देखो फिश भी हैं। अब हर एक के अंदर अलग अलग क्वालिटी है ना। फिश क्या कर सकती है, फ्लोट ऑन द वाटर, इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर ना, राइट। और बर्ड्स दे कैन इजीली डू दैट, दे कैन इजीली क्लाइंब द ट्री, है ना। अब देखो अगर आप बात करते हो तो क्या एलिफेंट ट्री पे चढ़ जाएगा? इट मीन्स ये प्रॉब्लम क्या दिखा रही है आपको, ये प्रॉब्लम आपको ये दिखा रही है ना कि सारे के सारे लोगों की क्वालिटीज अलग अलग होती हैं और उन्हीं क्वालिटीज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और तब आपको चेक करना पड़ेगा कि किस पर्सन को आपको स्पेशल प्रोटेक्शन देने की रिक्वायरमेंट है और किन किन लोगों को आप जस्ट एक कैटेगरी में रख के आप उनका सेम टेस्ट ले सकते हो। सभी के लिए सेम टेस्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी की अलग अलग क्वालिटीज हैं, सभी की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, राइट। अगर आप हाथी को बोलोगे ट्री पे चढ़ो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट, राइट। बर्ड्स इजीली चढ़ जाएंगे, फिश के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप किसी को ऐसे क्रिएचर को आप बोलोगे कि आप फ्लोट करके दिखाओ, फिश के लिए इजी है बट अदर क्रिएचर्स के लिए हो सकता है बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाए। इट मीन्स एवरी टाइप ऑफ क्रिएचर इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी। इन द सिमिलर मैनर हमारी सोसाइटी में भी तो ऐसा ही होता है ना कि हर एक पर्सन की सोशल कंडीशन अलग हो सकती है, राइट। इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग हो सकती है, उनका फिजिकल कंडीशन भी अलग हो सकती है। सम कैन बी जीनियस बाय बर्थ एंड अदर कैन बी डिसेबल ऑल्सो, राइट। कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको दूसरों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इसीलिए देखो क्या है, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं क्या इंश्योर करें कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए बाय विच एवरी पर्सन कैन बी श्योर दैट यस आई एम गेटिंग फेयर चांस टू डू इट एंड एवरीथिंग। और उसके लिए अगर हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप को जो खुद को डेवलप करने में सफिशिएंटली एबल नहीं है तो हम उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फेयर। समझ आया? गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, और वुमेन working in call centers at night may need special protection during the journey to and from the centers so that their equal right to work may be protected। अब देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे आप लोग बात करते हो कि आप लोग फील करते हो जैसे डिसेबल पीपल हैं, है ना, इफ दे आर वर्किंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस तो उनके लिए रिक्वायर्ड है कि रैंप होनी चाहिए उनके लिए, और आप भी फील करोगे इट इज रैशनल, इट इज नेसेसरी, क्योंकि हम उन लोगों को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम उन लोगों को एक ऐसा स्फीयर प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें उनको फील हो दैट यस वी ऑल आर इक्वल। अब जैसे फीमेल के रिगार्डिंग बात हो रही है तो क्या बोला गया, इफ दे आर वर्किंग एनीवेयर तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ देयर वर्क, है ना, सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय ना कि दे आर वर्किंग इन द इक्वल सिचुएशन, राइट। उनका राइट जो है, राइट टू यू कैन से राइट, इक्वल राइट का, वो प्रोटेक्टेड है। अगर उनको यही फील हो कि वो सेफ ही नहीं है, प्रोटेक्टेड ही नहीं है, तो दे विल नॉट बी एबल टू वर्क। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर करनी पड़ेगी, तब कहीं वो जाके क्या करेंगी, अपने राइट टू वर्क को एंजॉय कर पाएंगी। और उसके लिए अगर आपको स्पेशल प्रोटेक्शन करनी पड़ती है तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी, दैट इज द पार्ट टू इंश्योर इक्वालिटी ऑन प्रैक्टिकल बेसिस इन कंपैरिजन ऑफ थ्योरेटिकल बेसिस। समझ आया? These should not be seen as infringements of equality but enhancement of equality। आप ये नहीं मानोगे कि आपने इसकी वजह से ना इक्वालिटी को कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया,
कि इक्वालिटी के साथ आपने कहीं ना कहीं मतलब क्या कर दिया, आप लोगों ने इक्वालिटी के साथ छेड़छाड़ की है, या फिर आपने इक्वालिटी इंश्योर नहीं की, बल्कि एक डायमेंशन है जिसके थ्रू आप इक्वालिटी को इनहेंस कर सकते हो, राइट? अगर आपने सभी को बोल दिया कि आपके पास इलेक्ट होने का राइट है, तो पहले आप उनको इस पोजीशन में तो लेके आओ कि वो वोट डालने के लिए ईगर हो। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, एक भूखे पर्सन के लिए वोट के राइट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो अगर आप पहले उनको इस कंडीशन में लेके आओगे कि वो हैप्पीली वोट डालें, तो फिर वो कहीं सोचेंगे ना। अगर इस कंडीशन में लेके आओगे दैट दे आर ऑल्सो एबल टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो वो सोचेंगे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की। तो पहले आपको कुछ स्पेशल प्रोविजंस के थ्रू, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को उनके माइंड में मतलब जो इनसिक्योरिटी ना उसको बाहर निकालना पड़ेगा और एक सिक्योरिटी की फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी दैट यस वी ऑल आर इक्वल। समझ आया? What kind of differences hinder access to equal opportunity and what kind of policies may be pursued to overcome those hindrances are question that are being discussed in almost all societies today. अब देखो कौन से डिफरेंसेस हैं जो हमारी, अब देखो आप लोग देख पा रहे हो कि कुछ लोग हैं जिनकी हर एक अच्छी और एक इनसे सुप्रीम क्वालिटी की चीजों तक एक्सेस है, राइट? कुछ लोग हैं जिनकी नहीं है, मतलब उन लोगों को न्यूट्रिशियस फूड तक उन लोगों की इवन अवेलेबिलिटी नहीं है ना, रीच नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे स्टेप्स कौन से ले कि जिसके थ्रू जो हम सबके इक्वल एक्सेस को इंश्योर कर सकें, जो हिंड्रेंसेस हैं, जो पाथ में हर्डल्स हैं, उनको हम ओवरकम कर सकें, जो रुकावट है उनको दूर कर सकें, राइट? आर क्वेश्चन दैट बीइंग डिस्कस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज टुडे। और सिर्फ इंडिया जैसी सोसाइटी नहीं है, बल्कि ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, कौन से इश्यूज हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हो कि इनइक्वालिटी नहीं होगी? कौन सी पॉलिसीज के थ्रू आप बताओगे कि आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा पा रहे हो? Some countries have used policies of affirmative action. अभी affirmative action क्या होता है? Affirmative actions means जब आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन को इंश्योर कर पाते हो, तो आप क्या मानते हो कि वो अफर्मेटिव एक्शन है। जैसे हमने किसी के लिए क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन का कंसेप्ट ले लिया है ना। तो अब देखो कुछ कंट्रीज हैं जो अफर्मेटिव एक्शंस की पॉलिसी को यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन है ना, हम लोगों ने जैसे कि फीमेल्स के लिए 33% सीट्स रिजर्व कर दी। इवन अभी तो लोकसभा में भी चीजें पास हो गई हैं, बिल पास हो गया है ना। तो ये चीजें क्या दिखाती हैं आपको, ये अफर्मेटिव एक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि आप इसके थ्रू क्या इंश्योर करते हो, आप इंश्योर करते हो कि यस वी आर ऑल इक्वल, वी ऑल आर इक्वल, है ना। और अगर इक्वल नहीं है तो हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिसके थ्रू हम उनको इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं, राइट। Enhance equality of opportunity in our country we have relied on the policy of reservation। जो हमारी कंट्री में अफर्मेटिव एक्शन का एग्जांपल है वो क्या है, रिजर्वेशन, जिसके थ्रू हमने क्या इंश्योर किया है, वी हैव इंश्योर्ड दैट यस जो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत डिस्क्रिमिनेशन को टॉलरेट करते आ रहे हैं ना, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, right? In the next section we will attempt to understand the idea of affirmative action and understand some of the issues raised by specific policies within that framework। अभी डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं अफर्मेटिव एक्शंस, क्या कुछ इश्यूज आ रहे हैं इन पॉलिसीज के फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग। अब देखो ये क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज दैट स्टूडेंट विद द वेरियस काइंड ऑफ फिजिकल हैंडिकैप्स वुड नीड टू लर्न एज एनी अदर स्टूडेंट। अब देखो कोई फिजिकली हैंडिकैप स्टूडेंट हो सकता है ना, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कौन सी नीड्स रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है ताकि वो भी फील करे कि वो सभी के इक्वल हैं। Which of these facilities are available in your school? आपके स्कूल में क्या वो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? अब देखो क्या आपके स्कूल में रैंप्स बने हुए हैं ताकि सारे के सारे बच्चे इक्वली वहां पे क्लाइंब कर सकें, उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, राइट? क्या आपके स्कूल में ऐसी चीजें बनी हुई हैं जिसकी वजह से उन लोगों को फील हो कि नहीं हमारे साथ भी इक्वल ट्रीट हो रहा है, वी ऑल आर इक्वल, राइट? सो चेक योर सराउंडिंग्स एंड फील what equalities you are able to see around you and which kind of inequalities are existing in today's time also। Fine। अब आते हैं अफर्मेटिव एक्शन पे, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अफर्मेटिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सोसाइटी। तो भी अफर्मेटिव एक्शंस एक्चुअल में होते क्या हैं, ओके अफर्मेटिव एक्शंस की हमें जरूरत क्यों होती है। अब अफर्मेटिव एक्शन है क्या, लेट अस हैव अ लुक ओवर इट। आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर है कि अब आप
कैसे इक्वालिटी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के साथ इंश्योर कर सकते हो, और उसको आप रैशनल कंसीडर करोगे, राइट। आपने अगर रैंप्स बना दिए हैंडीकैप पर्सन के लिए तो आप इसको ये नहीं बोलोगे कि गलत है, समझा। यू विल फील कि उनकी नीड है, उनकी रिक्वायरमेंट है। आई होप दैट इज क्लियर। अब है गवर्नमेंट के कुछ एक्शन जिनको आप अफर्मेटिव एक्शंस मान सकते हो। अब ये हैं क्या अफर्मेटिव एक्शंस? लेट अस हैव अ लुक। Affirmative action is based on the idea that it's not sufficient to establish formal equality by law. अब देखो ये चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ के थ्रू जो इक्वालिटी एस्टैब्लिश होती है वो होती है फॉर्मल इक्वालिटी, लेकिन फॉर्मल इक्वालिटी दैट्स नॉट सफिशिएंट, वो एक सोसाइटी में कंप्लीटली सफिशिएंट हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए हमें इक्वालिटी बाय लॉ इंश्योर करनी पड़ेगी, और वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो अफर्मेटिव एक्शंस को आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ लॉज के अलावा आपको कुछ और उसके एडवांटेज में आपको कुछ और स्टेप्स लेके आने पड़ेंगे उसको इनहेंस करने के लिए, वही अफर्मेटिव एक्शंस। अब देखो क्या, व्हेन वी विश टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज दैट आर डीपली रूटेड, इट इज नेसेसरी टू टेक सम मोस्ट पॉजिटिव मेजर्स टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट एंट्रेंच्ड फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। जब आप बात करते हो ना कि सोशल इनइक्वालिटीज को आप कैसे डिक्रीज कर सकते हो, कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, जो हमारी सोसाइटी में बहुत डीपली रूटेड है ना, जिसकी जड़ें बहुत गहरी है हमारी सोसाइटी में, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको कुछ पॉजिटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप मिनिमाइज कर सको, ताकि आप एलिमिनेट कर सको जितनी भी सोशल इनइक्वालिटीज है उनको। समझा? आप कैसे इनइक्वालिटीज को कैसे फिर डिक्रीज कर सकते हो, कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। बिकॉज ओनली लॉ दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो फॉर्मल इक्वालिटी तो एस्टैब्लिश कर देगा, बट फॉर्मल में फिर वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, फिर जो सफिशिएंट होगा, जो कैपेबल होगा, वो गेन कर लेगा प्रॉफिट, और कुछ ग्रुप ऑफ द सोसाइटी वो ऐसे रह जाएंगे कि जिनको फिर स्पेशल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। समझा? मोस्ट पॉलिसीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन आर दस डिजाइन्ड टू करेक्ट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द पास्ट इनइक्वालिटीज। और आप जो आज देख पा रहे हो ना अफर्मेटिव एक्शंस, वो किसका रिजल्ट है? वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है, क्योंकि पास्ट में हम लोगों ने फील किया कि हमारी सोसाइटी के कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन टॉलरेट किया है। तो अब हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स कहीं ना कहीं इंश्योर करते हैं, ऐसी पॉलिसीज इंश्योर करते हैं ताकि हम पास्ट के इफेक्ट को खत्म कर सकें, उसको मिनिमाइज कर सके, उसको करेक्ट कर सके। जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करे थे ना सोसाइटी में इतने टाइम पीरियड से, तो ताकि हम उसको क्या कर सके, हम उस सोसाइटी उस चीज के इफेक्ट को हम कहीं ना कहीं कम कर सकें। अब जैसे कास्ट के बेस पे आप देखते हो हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा था, बहुत सारे लोगों की ना तो सोशल सर्विसेज तक इक्वल रीच ही नहीं थी। इसीलिए आज अगर हम बात करते कि लॉ के थ्रू तो हमने कर दिया सबको इक्वल, है ना, तो क्या वो इक्वल हो गए? दैट इज फॉर्मल इक्वालिटी ओनली ना। अगर हमें एक्चुअल में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी तो हमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना, ताकि हम उन लोगों को क्या कर सके, ताकि हम उन लोगों को इंश्योर करवा सके यस वी ऑल आर इक्वल, राइट। और वो बेसिकली क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पास्ट में बहुत कुछ टॉलरेट किया हुआ है, और उस पास्ट के एक्सपीरियंस से ना उन लोगों का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक गया है। इसीलिए हमें क्या करना है? अफर्मेटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि हम उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं चेंज करें, और उसके बाद सोसाइटी में एक कंप्लीट और रैशनल इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सकें। समझा? अफर्मेटिव एक्शन कैन हाउएवर टेक मैनी फॉर्म्स फ्रॉम प्रेफरेंशियल स्टैंडिंग ऑन फैसिलिटीज फॉर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब आप कुछ स्पेंड करते हो, प्रेफरेंशियली स्पेंड करते हो उन लोगों की फैसिलिटीज के ऊपर जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज होती हैं, राइट। जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज होती है ना, मतलब जिनको एडवांटेज नहीं मिला बिकॉज ऑफ देयर कंडीशन, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर सोशल कंडीशन, है ना, क्योंकि सोसाइटी में उन लोगों को इक्वल मैनर में ट्रीट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, बिकॉज ऑफ देयर क्लास, बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, बिकॉज ऑफ देयर रेस। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलते हैं हम लोगों को। तो हमें क्या करना है? हमें उन लोगों की इक्वालिटी के लिए, उन लोगों की फैसिलिटीज के लिए कुछ स्पेंड करना, कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड करना, क्योंकि उन लोगों ने ना बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस टॉलरेट की हुई हैं, उन लोगों ने बहुत कुछ टॉलरेट किया हुआ है, और वो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज बनी हुई है। इसलिए हमें अब क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर देम, such as scholarships and hostels to special consideration for admission to educational institutions and jobs.
आज आप लोग देख पा रहे हो ना कि हमारी सोसाइटी में जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, कोई रिक्रूटमेंट होती है, तो आप लोगों को इजीली देखने को मिल जाएगा ना कि हमारी कंट्री में क्या है, रिजर्वेशन का कंसेप्ट है। एंड व्हाई इज इट सो? वो रिजर्वेशन का कंसेप्ट क्यों अप्लाई होता है? ताकि वो लोग भी फील करें कि यस वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हमें भी इंपॉर्टेंस मिल रहा है। अब देखो, इवन हम क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट बनाते हैं, हम टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम इलेक्शंस करवाते हैं, वहां भी हम सीट्स को रिजर्व करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक पॉलिसी मेकिंग तक हर एक कम्युनिटी की रीच नहीं होगी, तब तक सभी का डेवलपमेंट हम इंश्योर ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अगर एजुकेशन आपके पास है तो आपकी हर एक चीज तक एक्सेस है, यू कैन एश्योर दैट। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम लोग कर भी क्या रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट्स हैं, तो उन सभी तक हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग सम टाइप ऑफ रिजर्वेशन, राइट। और वो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो, इन आवर कंट्री वी हैव अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कोर्ट्स एज रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशन एंड जॉब्स टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिप्राइव्ड ग्रुप्स। हम लोगों ने भी क्या किया है, यही सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ना अपनी कंट्री में। रिजर्वेशन कहाँ है, जॉब्स में भी रिजर्वेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन है, राइट। एंड दिस हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट। लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या चलती है, प्रॉब्लम हमेशा यही चलती है कि कुछ लोग इससे अग्री होते हैं, डिबेट यही चलती है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अब जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, तो जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है दैट वाज फॉर 10 years ओनली, 10 और 20 years की, उस साल उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लोग क्या हो जाएंगे, खुद को इस पोजीशन में ले आएंगे कि अब इनको इस किसी तरीके की रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, वोट बैंक के लिए हर बार क्या होता है, उसको 10 year के लिए इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी क्या है, ये डिबेटेबल इशू है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि इक्वालिटी है तो रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और रिजर्वेशन है तो फिर इक्वालिटी कैसी। जो इसको फेवर करते हैं वो लोग बोलते हैं कि अभी हमारा उतना फुली डेवलपमेंट नहीं हुआ कि हमें रिजर्वेशन को हम लोग छोड़ दें। जो लोग इसके अगेंस्ट में है, उनको क्या लगता है कि हमारी ज्यादा क्वालिटीज के ऊपर इनकी लेस क्वालिटीज को इंपॉर्टेंस मिल जाता है बिकॉज ऑफ देयर सोशल कंडीशन, है ना। इसीलिए बट वी आर नॉट एबल टू गेट कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि हमेशा डिबेट चलती रहती है, आप हर एक को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते सोसाइटी में। The policy has been defended on the ground that certain groups have been victim of social prejudice and discrimination in the form of exclusion and segregation. और हम लोग क्यों इस बात को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं कि क्यों रिजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि कुछ सोसाइटीज हैं, ग्रुप्स है, कुछ सोसाइटीज हैं हमारी, कुछ ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, जिनको सोसाइटी में बहुत कुछ हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में टॉलरेट करना पड़ा और वो उसका शिकार बने हैं, डिस्क्रिमिनेशन का, प्रेजुडाइज का, और इसलिए उनको क्या कर दिया कि सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया, और सेग्रीगेट क्या होता है, सेपरेट कर दिया। These communities who have suffered in the past and been denied equal opportunity cannot be immediately expected to compete with others on social terms. अब आप लोगों ने किसी एक ग्रुप को इतने सालों तक दबा के रखा, सप्रेस करके रखा, और आप आज उसको बोल रहे हो कि नहीं तुम तो सभी के साथ ही पार्टिसिपेट करोगे हर एक चीज में। दैट्स नॉट पॉसिबल। वही एग्जाम्पल कि अगर आप एक बिल्कुल हेल्दी बच्चा है और एक बिल्कुल ऐसा बच्चा जो डिसेबल बच्चा है, अगर आप उसको कहीं ना कहीं एक ही रेस में दौड़ाओगे तो कहीं ना कहीं वो आप उसको इक्वलिटी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं। इन द सिमिलर मैनर सोसाइटी में अगर आप ऐसे लोगों को जिन्होंने सोशली बहुत कुछ टॉलरेट किया और जो सोशली साउंड है, उन सबको एक जैसी क्वालिटीज दोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड। समझा? Therefore, in the interest of creating an egalitarian and just society, they need to be given special protection and help. इसीलिए अगर आप सच में चाहते हो ना कि आपकी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इगलिटेरियन मतलब जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो। अगर आप सच में चाहते हो कि ऐसी सोसाइटी आप क्रिएट करो, तो हमें उन लोगों को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन, कुछ स्पेशल हेल्प देनी पड़ेगी, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। समझा? आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। फाइन, मे बी अब देखो, इट मीन्स यहां तक आप लोगों को क्या समझ आया, दैट द बेस फॉर अफर्मेटिव एक्शन व्हाट इज दैट, वो होता है आपका सोशल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि आप किस पार्ट से बिलोंग करते हो, क्या क्या चीजें पास्ट में हैपन हुई हैं। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग क्या फील करते हैं कि कुछ ग्रुप्स हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं सोसाइटी में, जिन लोगों ने बहुत कुछ टॉलरेट किया है।
इसलिए हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड है, इसलिए अगर हम लोग इक्वालिटी इंश्योर करना चाहते तो हमें उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करने पड़ेंगे ताकि हम उनको इक्वल रेस में दौड़ने के लायक तो बनाए पहले। और इसीलिए हम लोग क्या रिजर्वेशन जैसे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंड दैट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, राइट। अगर आप पेट्रियार्कल सोसाइटी में सोचते हो कि फीमेल्स को ऐसे ही आप कहीं ना कहीं एम्पावर कर दोगे तो पॉसिबल नहीं है। जब वो पोजीशन में आ जाए तब आप रिजर्वेशन खत्म कर दो, राइट। बट पहले आप उनको इक्वल तो लेके आओ कि वो अपनी इक्वलिटी के लिए फाइट करें, समझा। तो उसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, और उनके लिए अगर हम कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं ना तो उसको भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट किया जाता है, जिसका गोल या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को इक्वालिटी प्रोवाइड करवाना, समझा। आई थिंक ये वाला पार्ट आपको कंप्लीटली क्लियर है, फाइन। अब उसके अलावा इसका और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, और डिटेल में क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप इंट्रोडक्शन टू अफर्मेटिव एक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बट इफ यू आर हैविंग डाउट्स यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. And one more thing, if you are able to understand, please press the like button and subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.